So, good morning, student. Now, today's lecture about animal tissues, where you have read type of animal tissues, epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and nervous tissues. Then we have discussed in previous lecture type of epithelium tissues. Epithelium tissues are divided on the basis of two things. First one is their location, second one their shape, second one is how it's work. So according their shape, simple epithelium tissues is squamous, cuboidal, columnar, pseudo structure, pseudo stratiate, and stratiate. And on the basis of their functions, it is glandulars, it is sensories, it is germinal, pigmented, and ciliated. So these are the complete descriptions about simple epithelium. Now, second, compound epithelium. Compound epithelium, there is no difference, only single epithelium is single cell thickness and compound epithelium is multi-layered thickness. Now, then we will complete connective tissues, where we have read connective tissues, areolar tissues, white tissues, yellow tissues, and skeleton tissues, vascular tissues, all things. And we have completed connective tissues proper. It is areolar tissues, white tissues, yellow tissues, adipose tissues, and reticular tissues. Then we have discussed skeleton tissues, where we have discussed cartilage and bones. Then third one, we have discussed vascular tissues, blood and lymph. We will take revisions of connective tissues after the completions of this chapter. Now today's topic is muscular tissues. So we will start muscular tissues. Here, animal muscular tissues. Muscular tissues consist of elongated cell, also called muscles fiber. Clear, student? It is the definition of muscular tissues. Muscular tissues is consist of elongated cell, also called muscles fiber. This tissue is responsible for movement of our body. Muscles contain special protein called contractile proteins. क्या कह रहा है उसको? Contractile proteins which contract and relax to cause movement. हमारे मसल्स में जो मूवमेंट होता है वो एक प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल protein. This one, contractile protein. Now, after that, this is the figure, A figure, B figure, and C figure. This is three type of figures: muscles fiber, striated muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Striated muscles where nuclei is present, and स्ट्रैटिएशंस, ये स्ट्रिप्स शो हो रही है, दिख रही है स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रिप्स. क्लियर स्टूडेंट? स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है. तो ये कौन सी हो गई? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिएड मसल्स. एंड सेकेंड वन इज स्मूथ मसल्स. कैसी मसल्स है? स्पिंडल शेप लाइक दैट. क्लियर स्टूडेंट? स्पिंडल शेप. ठीक है. इस मसल्स में क्या स्पेशलिटी है कि ये मसल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस को करती हैं. ठीक है. थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स इट इज स्ट्रैटिएट भी होती है एंड कुछ न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होती है. ये कहाँ होती है बेसिकली? इट इज प्रेजेंट इन हार्ट. कहाँ प्रेजेंट होती है ये? हार्ट में. तो दीज आर द कार्डियक मसल्स. वी कैन मूव सम मसल्स ऑफ कॉन्शियस विल. जिन मसल्स को हम अपनी इच्छा अनुसार या अपने विशेष के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है.
जस्ट लाइक मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम। हम अपने हाथ और पैर की मसल्स को अपने विल के अकॉर्डिंग हेल्प उसको मूव करा सकते हैं। तो दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है, जब हम चाहते हैं तो हम अपने हाथ और पैर के मूवमेंट्स को रोक लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। तो हमारा पॉइंट्स क्या आता है? वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन मसल्स। दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। इनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वॉलेंट्री का? ये कहाँ हो रही हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन मसल्स। ठीक है, क्यों स्केलेटन मसल्स कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड हैं। ये मसल्स हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड हैं और जनरली हमारी बोन्स से और हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हमारी विल के अकॉर्डिंग, विश के अकॉर्डिंग। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स। जब इन मसल्स को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहा है। दिस इज डार्क बैंड and this one is light band. Sorry, this is dark band और this is light band. ये हार्ट मसल्स हैं। ठीक है, ये हार्ट मसल्स है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो हमारी बिल के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है जब इन मसल्स को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको अल्टरनेटिव बैंड्स दिखाई देते हैं। सी है, दिस इज अल्टरनेटिव बैंड्स। ठीक है, स्ट्रिप्स, ये दिस वन और दिस वन, लाइट और डार्क। ठीक है, तो लाइट और डार्क बैंड्स इसके क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटन मसल्स। दीज मसल्स शो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ स्ट्रेटिएशन व्हेन स्ट्रेन अप्रोप्रिएटली। यदि इसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स देखना है तो एक डाई के थ्रू इसको क्या करना पड़ेगा? डाई करना पड़ेगा और उस डाई में लाइट और डार्क जो बैंड्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। क्लियर? As a result, they are also called striated muscles. That's the reason it is called as striated muscles. The voluntary muscles, skeleton muscles, the third name is striated muscles. तो तीनों सेम है। तीनों क्या है? सेम है। Voluntary, skeleton muscles and striated muscles. The cell of tissues are long, cylindrical, unbranched and multinucleated, having many nuclei. The movements of food of alimentary canal and the contractions of or relaxation of blood vessels are involuntary muscles. दूसरी मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर। ठीक है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्सेशंस पर। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक दिस वन, स्पिंडल शेप। ठीक है, थर्ड वन, वी कैन नॉट really start them or stop them simply by wanting to do so. हम इनको अपनी विश के अनुसार स्टॉप और स्टार्ट नहीं कर सकते, ये अपने आप वर्क करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री। कौन सी हुई? इनवॉलेंट्री। तो फर्स्ट हम लोगों ने वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड इनवॉलेंट्री मसल्स रीड किया क्योंकि ये इनवॉलेंट्री वर्क करती हैं। दिस इज नॉट related to our wish. Third one is it, ये कहाँ present होती हैं? Iris, they are also found in iris of eyes, uterus and bronchi of the lungs. These cells are long pointed end, spindle shape. ठीक है, pointed end. कैसा end है इसका? Pointed end. Clear student? स्पिंडल शेप, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड। ठीक है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी है ये? यूनिन्यूक्लिएटेड।
क्लियर? हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अनस्ट्रेटेड मसल्स. ठीक है. इनवॉलेंट्री मसल्स का सेकेंड नेम अनस्ट्रेटिएट मसल्स. ठीक है. अनवॉलेंट्री, और दिस इज अदर नेम अनवॉलेंट्री. ये हमारी उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं. इनवॉलेंट्री. ठीक है. ये कौन सी कहलाएंगी? इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. द मसल्स आर, so this is the two name, involuntary muscles and unstraighted muscles. Third one is, here structure is this. ठीक है. involuntary. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ जो मसल्स है, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट मसल्स. हार्ट की जो मसल्स होती हैं, द मसल्स ऑफ हार्ट शोइंग रिदम, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ. ये कैसे होती है? टायर्डलेस, टायर्ड नहीं होती. थर्ड इज कार्डियक मसल्स. मसल्स ये अनटायर्ड होती हैं, मतलब टायर्डलेस होती हैं, टायर्ड नहीं होती हैं. ठीक है. मतलब लॉन्ग लाइफ टिल बर्थ, मतलब फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ तक कंटिन्यूसली ये वर्क करती हैं. ये 1 मिनट को भी नहीं रुकती हैं. ठीक है. हार्ट कैसा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. 3 कैरेक्टर है इसके, 3 इसके फीचर हैं. फर्स्ट सिलेंड्रिकल, सेकेंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, थर्ड यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक है. सो देर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज. फर्स्ट वन इज सिलेंड्रिकल. ठीक है. फर्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, और थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. आफ्टर दैट we will discuss some points about nerves tissues. So nerves tissues is a very important tissues, nerves tissues. In these tissues we will read the functions and structure of nerves tissues. Nerves tissues all cell possess the ability to respond to stimuli. इसका काम क्या है? रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना. अब इस टर्म्स को मैं आपको बताती हूँ कैसे. रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं. तो ये जो चेंजेस हमारी बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है? इट इज़ ड्यू थ्रू बाय नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई हर्ट करता है, ठीक है ना, तो हम वहाँ से भागते हैं. या किसी डॉग को आपने कोई उसको एक स्टिक दिखाई तो वो बार्किंग शुरू करता है. तो बार्किंग क्या है? एक स्टिमुलस है और वो उसका रिस्पॉन्स है. उसको स्टिक दिखाना स्टिमुलस और उसकी बार्किंग करना रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस से क्या क्रिएट होगा? रिस्पॉन्स. ठीक है. और ये किसके थ्रू हो रहा है? नर्व्स टिश्यू के थ्रू. आई थिंक स्टूडेंट यू विल अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि नर्व्स टिश्यूज किस तरीके से वर्क कर रही हैं. सेल ऑफ द नर्व्स टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Nerves tissues हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक तार की तरीके से पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होती हैं. और ये कहाँ जाते हैं? 2 तरीके के नर्व्स टिश्यू होती है बेटा. एक जो ब्रेन को ले जाने वाली रिस्पॉन्सेज, स्टिमुलस को ब्रेन को ले जाने वाली, और दूसरा जो ब्रेन रिस्पॉन्स देता है उसके लिए. ठीक है. तो पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क होता है. तो अगेन वी विल रीड दिस लाइन. क्या है ये? कि इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेट एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली. हमारी जो नर्व्स ब्रेन होती हैं बहुत एक्साइटेड फॉर्म पर होती हैं और ये बहुत जल्दी स्टिमुलस को देती हैं और उसके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट करती हैं बॉडी ऑर्गन्स रिस्पॉन्स. जैसे फॉर एग्जांपल्स
यदि हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट पर अपना हैंड रखें तुरंत इमीडिएटली वी जस्ट रिमूव आवर हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? स्टिमुलस, और अपना हैंड वहाँ से रिमूव करना है, इट इज़ रिस्पॉन्स। सो ये काम हमारा कौन कर रहा है? नर्व्स टिश्यूज़। नर्व्स टिश्यूज़ बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये किससे बनी हुई है? दोनों नर्व्स टिश्यू से। So where nerve tissues is found or located in brain in spinal cord. ठीक है, the cell of this tissues is called nerve cell, और ये पूरे न्यूरॉन सिस्टम को फॉर्म करें। नर्व्स टिश्यू किसको बना रही हैं? नर्वस सिस्टम को। सो वी कैन से नर्व सेल और न्यूरॉन is called as unit of nervous system। इसको यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे ही नर्वस सिस्टम हमारा फॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो नर्वस सिस्टम का ये मेन पार्ट है। जैसे सेल को यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ऐसे ही नर्व सेल को यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, नाउ here structure of neurons given there, so we will discuss structure of neurons. Basically neurons is a special cell, it is longest cell, सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? लार्जेस्ट सेल। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं सबसे ज़्यादा उसमें बड़ी न्यूरॉन सेल होती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विद लॉन्ग थिन हेयर लाइक सिस्टम। एक इसमें सेल बॉडी है, ये देखो, ये जस्ट लाइक ये सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर स्टूडेंट? और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन। क्या कह रहे हैं इसको? एक्सॉन। इट इज़ कवर्ड विद माइलिन शीथ। किससे कवर्ड है ये? माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ से क्यों कवर है? बिकॉज इट वर्क एज अ इंसुलेशन। नर्व सेल्स को बहुत एक्साइटेड होती है नेचर में, तो इनको क्या करता है? ये सेपरेट करता है। तो दिस इज माइलिन शीथ। क्लियर स्टूडेंट? और इसके जो शॉर्ट स्ट्रेचेस हैं, दिस वन इज शॉर्ट स्ट्रेचेस। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। ठीक है, ईच इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अ मीटर लॉन्ग। ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेडेड है, तो इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। मैनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू। कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम ही है दो सिस्टम को कनेक्ट करना। ठीक है, और ये नर्व्स की वर्क को एनहेंस्ड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। नर्व्स इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट इट। हमारे नर्व्स इम्पल्सेस जो हैं हमारे नर्व्स को, हमारे मसल्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम इफ़ वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमारा हाथ जो है अपने आप उसको डिटैच करने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपना हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से डिटैच कर दें जब तक हमारा ब्रेन हमको ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो किसके? इनवॉलेंट्री मसल्स वो बेसिकली, और वॉलेंट्री मसल्स वो बेसिकली किसके ऊपर वर्क कर रही हैं? हमारे नर्व्स टिश्यू के रिस्पॉन्सेस पर। नर्व्स टिश्यू वहाँ पे पहुँच रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तभी हमारी मसल्स वर्क कर रही हैं। तो ये दिस लाइन यू हैव अंडरस्टूड
The individual nerve cells may be up to 1 meter long, and many nerve fiber bound together by connective tissues, ठीक है, make up a nerves. Next point, nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. Nerves impulses हमारी मसल्स को, जो भी हमने जस्ट बताया, हमारी मसल्स को मूव करने में हेल्प करती हैं. जैसा हम चाहते हैं वैसे ही नर्व्स इम्पल्सेस आएगा, ठीक है, और वैसे ही मसल्स मूव करेंगी. द फंक्शनल कॉम्बिनेशंस ऑफ नर्व्स एंड मसल्स फाइबर मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल. हमारी बॉडी में नर्व्स और मसल्स टिश्यू कंबाइंड वर्क करते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर एनिमल्स में ये फंडामेंटल हैं, इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है. The combinations enable animals to move rapidly in response to stimuli. और ये combinations animal को response करने में बहुत हेल्प करता है. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, किस किस का, नर्व्स का और मसल्स का, ठीक है, ये बहुत फंडामेंटल यूनिट है और इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ये क्या वर्क कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, एंड फंक्शंस animals to move rapidly in response to stimuli. Clear, student? So today we will finish our topic. Next topic, it is ending part of this chapter, we will discuss in next video. Okay, student, have a nice day.